There, myself Mr. Irfan Malik, once again in front of you with a new video lecture entitled on plant tissue. In this video, we will discuss all the facts about plant tissue. So before studying the plant tissue, I have a kind request to subscribe the channel. Thank you. So my dear, in this video, we will discuss that what is the plant tissue, what is the level of organization in plants, the classification of plant tissue, the meristematic tissue and its types, and the permanent tissue and its types. So be ready to discuss the plant tissue. My dear friends, in the previous lectures, I told you that multicellular organisms are made up of millions of cells and cells are the structural and functional unit of life. यानी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये छोटे छोटे मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं और ये सेल्स ही किसी भी प्लांट्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं. दिस शो द डिवीज़न ऑफ लेबर, अलग अलग कार्य करती हैं और स्पेसिफिक वर्क करती हैं. सच सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एज प्लांट टिश्यूज, और अंत में ये सारी सेल्स आपस में एक साथ मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करती है. हैंस now you can define to the plant tissue as that a plant tissue is a group of plant cell which is similar in structure, origin and functions. यानी कि आप प्लांट टिश्यू को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्लांट टिश्यू किसी भी प्लांट सेल्स का वो ग्रुप होता है जो स्ट्रक्चर में, ऑरिजिन में और फंक्शंस में सेम होता है. इसके बाद ये सारे टिश्यूज़ आपस में मिल के प्लांट्स के ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे रूट, लीव्स एंड स्टेम, और प्लांट्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन करते हैं. सो माय डियर, आई वांट टू सी अ चार्ट representing the level of organizations. In this chart you can see a plant cell which representing the cellular level of organizations. यानी कि जब किसी ऑर्गेनिज्म में केवल और केवल सेल्स पाई जाती है, टिश्यू नहीं मिलता है, तो उसको हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं. फर्दर, मैनी सेल्स combined together to form a tissue. In the second pictures you can see the plant tissue. जब कई सारी प्लांट सेल आपस में मिल जाती है तो प्लांट टिश्यू का फॉर्मेशन करती है और इस लेवल को हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं. Similarly, these tissues combine together to form organ and known as the organ level of organizations. यानी कि इसके बाद ये सारे और टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और इस लेवल को हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं. फर्दर, दीज ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म. और इस तरह से एक छोटी सी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू. नाउ यू कैन सी अ चार्ट रिप्रेजेंटिंग द प्लांट टिश्यू. Generally, a plant tissue can be divided into two types. First, the meristematic plant tissue and second, the permanent plant tissue. Meristematic plant tissue is the group of cells that cannot be divided, and permanent plant tissue is the group of cells that cannot be divided. Means meristematic plant cells can be divided and permanent tissue cell cannot be divided. Hence, further meristematic tissue can be divided into three types: apical tissue, intercalary tissue and lateral tissue. Similarly, permanent tissue also can be divided into simple tissue and complex tissue. Now we will discuss to the meristematic tissue. In this video I'm going to tell you a very important thing about the meristematic tissue, which is very effective for those candidates who are going to be appear in the various types of competitive exams.
यानी कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए NVS, KVS, UP, PGT, DSSB और UPPSC और अदर दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द टर्म मेरिस्टेम वाज गिवन बाय द कॉल विल्हेम वॉन नागेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको बुक में कम ही पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक टर्म था ये कॉल विल्हेम वॉन नागेली ने दिया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट सेल दैट कैन बी डिवाइड बाय अ सेल डिवीजन। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट सेल्स का वो ग्रुप होता है जिसकी सेल्स सेल डिवीजन के द्वारा डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि सेल डिविजन्स विल अकर्स। दे हैव वेरी स्मॉल एंड फ्यू वैक्यूल्स। बहुत ही छोटे छोटे कई वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। दे आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड। लिविंग सेल होती है और थिन वॉल्ड होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हील द वाउंड ऑफ एन इंजर्ड प्लांट। सो प्लांट्स के जो भी डैमेजेस होते हैं, इंजरी होती है, लॉस्ट होता है, उन सभी को हील करने में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे आगे रहती है। द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर यंग एंड इमेच्योर। ये सेल्स कभी ओल्ड नहीं होती है, इनकी डेथ नहीं होती है, हमेशा इमेच्योर रहती है, यंग रहती है। दे डू नॉट स्टोर फूड। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स की एक ऐसी सेल है, ऐसा टिश्यू जो फूड को स्टोर नहीं करता है। दे पॉजेज ए सिंगल लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनमें भी एक सिंगल और बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। If you want to know about the function of meristematic tissue, then it increase the length, girth and bud। यानी कि प्लांट की हाइट, वेट और गर्थ और बड का जो फॉर्मेशन होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा ही होता है। Now we would know about the types of meristematic tissue. On the basis of locations, meristematic tissue can be divided into 3 types of tissue, such as the apical meristematic tissue, the intercalary meristematic tissue, and the lateral meristematic tissue. Now I want to show a pictures on the basis of locations. Meristematic tissue can be divided into 3 types. सबसे पहले अगर आपको दिख रहा है तो बेसिस के आधार पे जो टिप होती है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है, वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिख रहा है। जो मिडिल पार्ट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और जो रूट की और शूट की दोनों तरफ की जो साइड होती है, जिनको लेटरल साइड बोलते हैं हम, वहाँ पे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस, meristematic tissue can be divided into 3 types: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. So now first of all we will know about the apical meristematic tissue. These are present at the tips of the root and shoot. Apical meristematic tissue जो है root और shoot बोलते हैं stems को, जमीन से ऊपर के पार्ट को। तो shoot और root की जो tips होती है, जो upper part होता है, वहाँ पे जो shells होते हैं उनको हम apical meristematic टिश्यू कहते हैं। वेरियस सेल डिवीजन फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सेल इन द रूट एंड शूट। रूट और शूट की जो ग्रोथ होती है उनको ये फैसिलिटेट करती है। अगर हम फंक्शंस की बात करें, दे हेल्प इन द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट। तो ये प्लांट की हाइट बढ़ाने में हेल्प करती है और ये कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दे हेल्प इन द सेलुलर एनलार्जमेंट। ये सेल के साइज को बढ़ाने में भी हेल्पफुल होते हैं। सेकेंड इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट इज़ लोकेटेड इन द लीव्स एंड इंटरनोड। प्लांट्स की जो लीव्स होती है और इंटरनोड होते हैं, वहाँ पे ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन ग्रास, मोनोकोट एंड पाइन्स। जितने भी ग्रास हैं, मोनोकोट्स हैं, पाइन्स हैं, उन सभी में आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलेगा। फंक्शंस की बात करते हैं, ऐड टू द हाइट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की हाइट बढ़ाने में काम करते हैं। हेल्प टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। और इंटरनोड, प्लांट्स की जो इंटरनोड होती है उनकी लेंथ बढ़ाने में सहायक है। थर्ड टाइप इज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट इज लोकेटेड इन द स्टेम एंड रूट ऑन द लेटरल साइड। रूट और स्टेम की जो दोनों साइड होती हैं वहाँ पे ये टिश्यू देखने को मिलेगा। वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम बोथ आर द लेटरल मेरिस्टेम। ये एग्जाम्पल हैं। दी डिवाइड रेडियली डिवाइड होते हैं और परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। यदि फंक्शंस की बात करेंगे, इट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द प्लांट। तो ये प्लांट की मोटाई को बढ़ाने में हेल्पफुल है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज द परमानेंट प्लांट टिश्यू। मैंने पहले ही बताया था, ए ग्रुप ऑफ प्लांट सेल दैट कैन नॉट बी डिवाइड बाय द सेल डिवीजन। यानी कि परमानेंट प्लांट टिश्यू जो है, किसी भी प्लांट सेल का वो ग्रुप होता है जो सेल डिवीजन के द्वारा डिवाइड नहीं होती है।
यानी कि सेल डिवीजन विल बी एब्सेंट इन परमानेंट प्लांट टिश्यू। दे लॉस देयर सेल डिवीजन एबिलिटी, चूंकि इनके पास डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती है। नाउ द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, as I told you that generally permanent plant tissue can be divided into two types. First is the simple permanent tissue and second is the complex permanent tissue. So सबसे पहले हम पढ़ते हैं simple permanent tissue. A group of single type cell with the same origin, structure and function. Simple permanent tissue जो होते हैं single type of cell का एक ऐसा ग्रुप होता है जो ओरिजिन में, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सेम होता है और जिनमें सेल डिवीजन नहीं होती है। हैंस दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज नॉन एज द होमोजीनस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाई कॉम्पिटिटिव्स इन इंडिया, यानी कि जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नेट, JRF, UPSC एग्जाम्स, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि होमोजीनस टिश्यू क्या होते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को होमोजीनस टिश्यू इसलिए कहते हैं कि इसकी सभी सेल एक तरह की होती हैं। Now the classification of simple permanent tissue. They may be classified into three types. First the parenchyma, second is the collenchyma, and third is the sclerenchyma. So first of all we would know to the parenchyma. पैरेन्काइमा सेल हैव एन ओवल और राउंड शेप। इनकी जो शेप होती है वो राउंडेड होगी या फिर ओवल होगी। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज। इनकी जो सेल वॉल होती है वो हेमीसेल्यूलोज की या फिर सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये नीट वाले एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरेन्काइमा की सेल वॉल किसकी बनी होती है। सेल इज थिन वॉल्ड। इनकी जो वॉल होती है, सेल वॉल, वो बहुत ही थिन होती है, पतली होती है। सेल है वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं। इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के सभी पार्ट्स में ये पाई जाती है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या फिर लीव्स। प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग एंड डेंस। इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो लिविंग होता है, यानी कि ये सेल, पैरेन्काइमा सेल जो होती हैं, लिविंग होती हैं और काफ़ी डेंस होता है। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से किस सेल का प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है या कौन सी सेल लिविंग होती है, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा। नाउ सेकंड इज द कोलेन्काइमा। द सेल्स आर लॉन्ग एंड थिक वॉल्ड। कोलेन्काइमा जो होती है लंबी होती है और थिक वॉल्ड होती है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि इन तीनों सेल में से पैक्टिन किस में पाया जाता है। तो जो कोलेन्काइमा, इसकी जो सेल वॉल होती है वो पैक्टिन की बनी होती है। इट इज़ फाउंड इन हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम। जितने भी डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनके हाइपोडर्मिस में कोलेन्काइमा आपको देखने को मिलेगा। द अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस। बाकी सेल्स की अपेक्षा इनमें क्लोरोप्लास्ट काफ़ी कम होता है। द सेल हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि इनकी जो सेल होती हैं एक दूसरे से सटी होती है, उनके बीच में कोई खाली जगह नहीं होती है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज द स्क्लेरेन्काइमा। दीज आर डेड टिश्यूज। अभी मैंने बताया था कि पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा डेड होते हैं। वेरी हार्ड एंड रिजिड। हार्ड होते हैं, टेक्सचर में रिजिड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं और शेप और साइज अलग अलग होती है। दिस प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द प्लांट, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है और ये भी एग्जाम्स की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। A group of many type cells with same origin, structure and functions. Complex permanent tissue मेनी टाइप ऑफ सेल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो ओरिजिन में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में सेम होता है और जिनमें सेल डिवीजन नहीं होती है। नॉन एज हेट्रोजिनस टिश्यू। इसीलिए इनको हेट्रोजिनस टिश्यूज भी कहते हैं और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Generally, complex permanent tissue can be divided into two types. First is the xylem and second is the phloem. So we have to start about the xylem. It is transport water and nutrient from the root to the leaves of the plant. जो xylem होता है ये सॉइल से रूट के थ्रू प्लांट की लीव्स तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है और लीव्स में ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होती है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये प्लांट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ मेड अप बाई, मैंने अभी बताया था कि
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कई तरह की सेलों का एक ग्रुप होता है। तो जाइलम में भी कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं। वुड यू लाइक टू नो? लेट अस फर्स्ट इज द ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड द जाइलम पैरेन्काइमा। यानी कि ये चार अलग अलग तरह की सेल्स हैं जो आपस में मिलकर जाइलम का फॉर्मेशन करती है। इसीलिए जाइलम को हेटेरोजेनस टिश्यू भी कहा जाता है। इन सभी सेल्स में कोई सेल डिवीज़न नहीं होती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर में, फंक्शंस में, ओरिजिन में सेम होते हैं। सेकेंड इज द फ्लोएम। इट ट्रांसलोकेट द प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अभी मैंने बताया था कि प्लांट्स के लीव्स में जो भोजन बनता है, जो फूड बनता है, उस फूड को ये फ्लोएम प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक ट्रांसलोकेट करता है, सप्लाई करता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द पास्ट। ये बड़ा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको हम पास्ट कहते हैं, ये किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। जाइलम की तरह ये भी कई तरह की अलग अलग सेल्स का ग्रुप होता है, जैसे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। यानी कि यहाँ पर भी ये चार अलग अलग तरह की सेल्स आपस में मिलकर जो टिश्यू बनाती है, एक ऐसे टिश्यू बनाती है जो ओरिजिन में, स्ट्रक्चर्स में, फंक्शन में सेम होता है, सेल डिवीज़न नहीं होती है, और अलग अलग सेल होने की वजह से इसको हम हेटेरोजेनस टिश्यू कहते हैं। नाउ इफ़ यू नो अबाउट next video, then my next video lecture entitled on the animal tissue is coming soon. If you feel good, then you have to like this video. If you feel that it is very important to us, then you have to share it with your friends. And in the last, I have a request to subscribe the channel